دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات یہ آڈیو سننا شروع کریں، ایک عرض جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے درس نظامی کی ہو، یا پھر جو ان کے یہاں کے ذمہ دار مناظرین ہیں، معروف مناظرین ہیں، ان میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ذمہ دار علماء کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر سکے۔ لہذا دیوبندیوں کی جو ہے نا ایک عورت صفت پردے والی جماعت جو ہے نا وہ میدان میں موجود ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ بس فون کیا کسی کو کبھی بھی کہیں بھی، اور بس فون کر کے بڑبڑ یہ جی یہ میں نے یہ آپ کے فلانے نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، اور یہ میں نے ثابت کر دیا ہے، جی مناظرہ ختم ہو گیا، ہم جیت گئے فون پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے، اگلا کچھ بول رہا ہے، اس کی بات بھی نہیں سن رہے ہیں، اس کا سوال بھی نہیں سن رہے ہیں، اس کا جواب بھی نہیں، کچھ نہیں جی، میں اپنی بول کے بس مناظرہ جیت جاؤں۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا، آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ تشریف لائیے سامنے سے، کیونکہ آپ کے یہاں پر تو ویڈیو جو ہے وہ جائز ہے، تو آپ یوٹیوب پہ تشریف لائیے، وہاں پر جو ہے آپ سامنے بیٹھیے، دعویٰ جواب دعویٰ شرائط مناظرہ طے کیا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹائم کا تعین ہو، آپ اپنے ٹائم میں بولیں، میں اپنے ٹائم میں بولوں، اور جو ہے بات کسی نتیجے تک پہنچے۔ تو جناب یہ سنتے ہی ان کے اندر کی جو عورت والی صفت وہ جاگ جاتی ہے، جی پردہ۔ میں سمجھتا ہوں اتنا تو ان کی جو ہے جماعت کی عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی جتنا یہ ان کے مرد لوگ پردہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ تشریف لائیں، اگر اپنی جماعت کا کوئی ذمہ دار مناظر لاتے ہیں تو ہماری جماعت سے بھی کوئی ذمہ دار مناظر تشریف لائے، اور جو ہے بیٹھ کر مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اگر آپ نے ہی افہام و تفہیم کرنا ہے تو بھائی ٹائم کا تعین کر کے، شرائط کا تعین کر کے آپس میں ہی جو ہے وہ دلائل کا تبادلہ کر لیا جائے۔ آپ لوگ جو ہے وہ عورت بننا چھوڑیں، یوٹیوب پر سامنے تشریف لائیں، تاکہ آپ کی جماعت بھی آپ کو دیکھے، اور اگر آپ جو ہے وہ ان کی نام پوچھی کرنے والے ہیں دیوبندیوں کی تو وہ آپ کی تعریف کریں، اور اگر آپ ان کی لوٹیاں ڈبونے والے ہیں تو پھر لوگ دیکھ لیں کہ بھائی آپ ہیں جنہوں نے ان کی ناک کٹائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی ڈر کی وجہ سے لوگ نہیں آتے۔ بہرحال آپ حضرات جو ہے وہ آڈیو سماعت کریں۔ ہلو ہلو، ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں محمد عمر۔ کہاں سے نمبر ملا آپ کو عمر بھائی؟ کہاں سے نمبر ملا آپ کو؟ ارے کیوں گھبرا رہے ہو یار، بات تو کرو۔ کہاں گھبرا رہا ہوں بھائی، میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ نمبر کہاں سے ملا؟ گروپ سے جی، بتائیے کیا بات ہے؟ کیا مسلک کے ہیں؟ کون سے مسلک کے یہاں پہ؟ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کے پابند میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مشتاق علی انصاری نام ہے۔ مشتاق علی انصاری۔ مشتاق علی انصاری، اچھا۔ وہ گروپ میں آپ کچھ اعتراض کر رہے تھے حفظ الایمان کے تعلق سے، کیا اعتراض کر رہے تھے؟ اچھا جی بحث و مباحثہ سے ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے جو لکھا ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ اگر بالفرض جو ہے مان لیا جائے زید کی بات صحیح ہو کہ بعض لوگ میں کہہ دیا مراد لیتا ہے زید، تو اگر یہ مان بھی لیا جائے۔ نہیں، جو کتاب ہے اس کے آپ اندازہ مت دیں گے، حفظ الایمان کی عبارت پڑھ کے سنا دیں سوال کے ساتھ۔ تو اس کے لیے تو ٹائم لگے گا، پھر اب شام میں تشریف لائیں، شام کو۔ ایک کام کرتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عمر بھائی، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ جی ممبئی سے۔ ارے واہ، کہاں ممبئی میں؟ کہاں ممبئی میں ہے تو نہیں بتانا چاہتے ممبئی میں کہاں پہ ہیں آپ؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میرا گھر نالا سپارہ میں ہے، کام باندرا میں کیا ہوں کافی ٹائم۔ باندرا میں کیا ہے؟ باندرا میں کام کیا ہوں کافی ٹائم تک میں نے۔ باندرا میں صرف کام کیے ہیں، اور کہاں کام کرتے ہیں؟ اور بھی کیا ہے ممبئی کے کافی سارے ایریاز میں ہم نے کام کیا ہے۔ کون سے کام کیے؟ کون سے کام کرتے ہیں؟ ایمبرائڈری کا کام ہے ہمارا۔ اچھا، وہ جوری والا مشین کا کہ ہاتھ کا؟ مشین کا۔ ایمبرائڈری مطلب وہ مشین کا ابھی کہاں چلتا ہے؟ تو وہ ختم ہو گیا۔
नहीं, खत्म नहीं हुआ, आज भी हम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। तो तालीम क्या तालीम है आपकी? मैं हाफिज हूँ, कारी हूँ, बस इतना? बस इतना ही। ठीक। तो एतराज कर रहे हैं ये इस चीज का, कभी हिफ्जुल ईमान आपने पढ़ा? तो बिल्कुल पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। तो उसके जो इबारत है वो क्या है, बताएंगे? क्या है? इबारत है, गुस्ताखाना इबारत है। आप बताएंगे गुस्ताखाना कहाँ है? गुस्ताखाना वही चीज में पूछ रहा हूँ। जब उसमें उन्होंने वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इबारत पढ़ के सुनाइए, तो हमने कहा भाई आप इबारत सामने नहीं है तशरीफ लाइए। नहीं, किताब मेरे हाथ में अभी नहीं आपके है। पास नहीं है तो मैं भेज देता हूँ, आप इसमें पढ़ के सुनाइए। तो एक काम करते हैं ना, आपको मैं सुनिए भेज रहा हूँ ना। तो उमर भाई, क्यों यार? ऐसे हाँ, ठीक है। ऐसे 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 सुनिए, ये जो तरीका है ना थोपना, अब आप बात करना चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है, जी, और हाँ, जो है इसके लिए ये भी जरूरी है कि जिससे आप बात करना चाह रहे हो जिस वक्त, वो उस वक्त में अगर हाँ। बात करना चाहे तो ठीक है, ना अगर करना चाहे तो दोनों लोग मिलकर इत्तेफाक कर ले किसी टाइम पर कि भाई हो सकता है कोई बंदा भी। सुनने ग्रुप में एतराज किया तो बात करने के लिए किया है ना, कि नहीं किया? टाइम हो गया काफी, करीब आधा घंटा हो गया होगा। कितना घंटा हुआ? आधा घंटा करीब हो गया होगा, करीब करीब। अच्छा, लिखे हुए आधा घंटा हो गया। हाँ जी, करीब करीब। तो अभी आप, हाँ ठीक है, नहीं, ये समझ तो गया आप। चलो समझ गया। नहीं, अरे मुझे भी बोलने दोगे कि आप ही बोलोगे? आप ही तो बोल रहे हैं। मैंने, हाँ, जब मैंने फोन किया आपको कि एतराज क्या है हिफ्जुल ईमान पर, तो आपने उसको इबारत पढ़ना शुरू किया अपने अंदाज से, ठीक है। उस वक्त आपने नहीं कहा कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी मुझे टाइम नहीं है, या जो भी हो। तो आप, मैंने कहा इबारत आप किताब से पढ़िए, आपने कहा किताब मेरे पास नहीं है, तो मैं किताब आपको फराहम कर रहा हूँ, प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। आपने किताब का उज्र किया तो मैं किताब आपको भेज रहा हूँ। तो उसमें बात करने में आपका उज्र यही था कि आपके पास वो किताब नहीं है, तो वो उज्र भी मैं आपको खत्म कर रहा हूँ, किताब भी भेज के कि आप इस किताब में से पढ़ के बताइए। अच्छा, हो गई बात। तो आप नहीं कहा कि चलिए, हाँ चलिए बताइए। अब मैं बोल रहा हूँ, बात यह है कि उधर सिर्फ जो है वो किताब ही का हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको आपने फोन किया है हो सकता है कि वो उस टाइम जो है बात ना करना चाहे, कोई भी रीजन हो सकता है। अब दोनों एक दूसरे से इत्तेफाक कर लेते हैं, भाई अगर शाम के लिए आप जो है अवेलेबल नहीं है तो आप अपना टाइम बता दीजिए, एक टाइम पर खास किसी काम के लिए हम दोनों जमा हो जाते हैं और बात कर लेते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। मैं बुराई नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, एग्री है, लेकिन उस वक्त आपने वो जो ये बयान किया कि आपके पास किताब नहीं है, आपने इबारत भी पढ़ना शुरू की। उस इबारत पढ़ने से पहले आप कहते कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ काम है, कुछ वजह है, तो मैं समझ जाता। लेकिन आप एतराज की इबारत पढ़ने लगे अपने अंदाज से, उसमें गलत भी इबारत पढ़ी, तो मैंने कहा आप असल किताब से पढ़िए, तो आपने कहा असल किताब मेरे पास नहीं है। तो असल किताब नहीं थी तो मैं आपको उसको दे रहा हूँ, तो उज्र वहाँ होता जो आप शुरू में कर देते ना, आप तो बात करनी शुरू कर दिए थे ना भाई, इबारत भी पढ़ना शुरू कर दिए थे। देखें, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि जब मैंने इबारत पढ़नी शुरू की या जो कुछ भी किया, तो भाई उस वक्त क्या मैंने ये कहा था आपसे कि मेरा सिर्फ एक ही उज़र है कि मैं जो है ये कर दूं? असल में बात यह है उमर भाई कि ये बात जो है ना ऐसी नहीं है कि बस चलते फिरते जो है बस कर लो, बिल्कुल आसान चीज है, ये एक बड़ी संजीदगी वाली बात है। और इसके लिए जो है ना वो अच्छे से एहतमाम से बैठकर बात किया जाए तो ज्यादा मुफीद होगी, है ना। तो इसलिए अगर आपके पास रात में नहीं है तो आप अपना टाइम बता दें, उस टाइम में इंशाल्लाह बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक है, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, कल जोहर बाद हम बात करेंगे, चलेगा? नहीं, जोहर बात तो नहीं कर सकते, कल जो है वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस होगा, उसमें इंशाल्लाह शिरकत होगी। तो जोहर बाद मिलादुन नबी कहाँ से साबित है? ईद मिलादुन नबी कहाँ से साबित है? तो पहले इसी पे कर लेंगे, लेकिन रात में, है ना। ये मौजूद रख लेते हैं कि ईशाबाद। चलिए बताइए, ईशाबाद। ईशाबाद आज ईशाबाद करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ ईशाबाद। ईशाबाद। और सुन तो नबी का आपको देना। हाँ ठीक उमर भाई, बात ये है कि बात करेंगे कहाँ पे? फोन पे, ये कॉल पे? हाँ कॉल पे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इससे अच्छी तजवीज मेरे पास है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, आप उस पर तशरीफ लाइए, लाइव जो है बात करते हैं, 4 लोग देखेंगे उसको। आप सुनिए, आप फोन पे बात करिए, यही जो ऑडियो है ना वो अपने चैनल पे चला दीजिए, ठीक है? ऑडियो लाखों सुनेंगे, आप यही चैनल पे आप अपलोड कर दीजिए, सुने तो जैसे कि आम तौर पर लोग करते हैं। उमर भाई, ऑडियो से बेहतर मैं वीडियो समझता हूँ, वीडियो में कोई दिक्कत है आपको? नहीं तो आपको ऑडियो में क्या दिक्कत है?
मैं तो दिक्कत ये वीडियो से है अच्छा आइडिया समझता हूँ। हाँ, क्या दिक्कत? हाँ, जिस तरह आप ऑडियो को ज्यादा बेहतर समझते हो उस तरीके से हम वीडियो को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो दिक्कत क्या है फिर? अभी तो आपने कहा कि आप वो जो बता रहे थे कि अभी टाइम नहीं है, वो अपना अच्छे से नहीं, टाइम कल मिल की जाएगा तो बात करेंगे। अब कल आप की- आइडिया, आप वीडियो में बात करने लगे। तो आपके क्या टाइम होगा में भैया? मैं एग्री हुआ, आपने कहा कि ऐसा बात करेंगे, मैं तो आपके टाइम पे एग्री हो गया। ठीक है, तो- मैंने कोई उज्र नहीं किया, अभी भी बात कर सकता हूँ। आपने ऐसा बात तो जिस तरीके से कर बात कर सकता हूँ। तो आपको मेरे फोन पे नजदीक- बात करने में क्या दिक्कत है? हाँ, जैसे मेरे नजदीक ज्यादा जो है मुफीद चीज जो है ना वो वीडियो पे बात करना है, और वीडियो आपके नजदीक कोई मसला तो होना नहीं चाहिए। क्या मसला? मैं समझ। अच्छा, जो लोग फोन पर बात करके, बरेली हजरत फोन पर बात करके अपलोड करते हैं, वो मतलब उनके नजदीक सही नहीं है, गलत है आपके नजदीक? नहीं, वो उनके नजदीक सही होगा, मेरे नजदीक भी सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपनी अच्छा, तबीयत आपके बताता हूँ। नजदीक, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके नजदीक वो तरीका सही नहीं है कौन सा? कि फोन पर बात करके जो लोग आइडियो को अपलोड करते हैं चैनल नहीं, मैं पर, उसे तो वो आपके नजदीक वो तरीका बरेलियों का सही नहीं है, आप कहते हैं। सुनिए, तो मैं मुझसे पूछे ना मेरे नजदीक क्या सही है क्या सही नहीं है। मेरे नजदीक वो भी सही है, उनका भी अपना काम है, वो सही है, लेकिन भाई मेरे नजदीक जब मुझे वो ज्यादा सही पसंद वीडियो है, है। नहीं आपने जी। कहा जब वो सही है तो आपने खुद कह दिया सही है। जब सही चीज है तो एक सही चीज को अपनाने में क्या तुमको उज्र है भाई? आपने जब खुद कबूल कर लिया कि फोन पे बात करना सही है। लेकिन ज्यादा बेहतर वीडियो है, उसमें आपको क्या दिक्कत है ये बता दीजिए। ज्यादा कम की बात नहीं हुई, आपने कहा वो सही है। जब आपने उसको हाँ। सही मान लिया है तो एक चीज सही करने में आपको क्या दिक्कत है, जिस चीज पे हम दोनों का इत्तेफाक है? तो उससे बेहतर हमारे लिए वीडियो है, वीडियो की आप जो है बुराई नहीं, बयान करें। आपको देखो, हमने कहा कि फोन पे बात करो सही, आपने भी मान लिया हाँ फोन पे सही है, तो दोनों जो का लोग इत्तेफाक करते हैं। हुआ ना उससे? नहीं, उससे इत्तेफाक हुआ ना भाई? इस पे जब सुनिए तो। एक चीज पे इत्तेफाक हो गया है तो वो चीज अपनाने में भलाई है, जो चीज में फरीकैन का इत्तेफाक हो जाए। उमर भाई आप उज्र मत देखिए, कीजिए। हाँ, ठीक है। अगर ऊंचा अगर नीचा आपको करने डर वाली बात है, आपको कुछ अगर- डर लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या है? फोन पे बात करने में क्या डर है आपको? देखें उमर भाई, पहली हाँ, बात तो देखिए। ये है कि अगर आपका मकसद ये है कि आपकी बात ऊंची हो जाए, मेरी नीचे हो जाए, और आप जीत जाए मैं हार जाऊं, तो भाई मैं पहले ही कहता हूँ आप जीत गए, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, आप जीत गए, मुबारक हो। अच्छा, मैं जीत गया यानी ईद मिलादुन नबी गलत है, आपने ये मान लिया? नहीं जी, आपका जो मकसद है आप यही आपने चाहते कहा हैं ना कि मैं जीत गया, तो यानी जो मेरे दलाइल भारी थे इसलिए मैं जीत गया, आपके दलाइल अगर- नहीं थे इसलिए आप हार गए। आपने खुद मान लिया कि ईद मिलादुन नबी का जो मौजूद था उस पर आपने हार मान ली है, और उस पर कोई दलील नहीं है। अगर मकसद आपका जीत हार है तो ठीक है जी, आप जीत गए, लेकिन अगर मकसद जो है वो दलाइल से बात को वाज़ेह करना है और हक बात जो है तक पहुंचना है, तो भाई उसमें नहीं जीते आप। अगर जीतने हारने के लिए आए तो भाई जीत लीजिए, और अगर हक फोन तक पहुंचना है तो फोन पर हम बात करेंगे तो उससे दलाइल नहीं आएंगे क्या? अब जो मैं इबारत पढ़ूंगा आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप जो पढ़ेंगे मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, इससे क्या दलाइल नहीं आएंगे? नहीं, इससे दलाइल आएंगे, लेकिन देखें वीडियो में क्या है, यूट्यूब पे फिर क्या है, देखो, सुन तो लीजिए ना। आपको बोलना है जितना बोल लीजिए, फिर मेरी भी सुन लीजिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने माना है कि आइडियो में भी बात कर सकते हैं, फोन पे भी सही है बात करना। आप कह रहे हैं कि दलाइल में भी बात करना है, तो दलाइल क्या फोन से नहीं होता? फोन में दलाइल पे नहीं पढ़ा जाता? कुरान हदीस फोन पे नहीं पढ़ी जाती? अच्छा, तो अब सुन तो लीजिए, मेरा मौके पे तो सुन लीजिए पूरा, अब बीच में ना कथा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब वीडियो में करेंगे तो 4 लोग आपको देखेंगे, आपकी शक्ल देखेंगे, आपकी दाढ़ी देखेंगे, तो कहेंगे यार ये माशाल्लाह एक जिम्मेदार शख्सियत है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि यूट्यूब पे हम लोग क्या है ना, एक टाइमर लगाएंगे, सारी ऑडियंस को दिख रहा होगा कि भाई ये टाइमर है, हजरत का टाइम 2 मिनट है और ये हजरत का टाइम 2 मिनट है, दोनों अपने अपने टाइम में बोल रहे हैं, और इनकी अपनी पूरी बात आ रही है, इनकी अपनी पूरी बात आ रही है, बाद में वो महफूज भी हो जाएगी। तो मेरे नजदीक ये बेहतर है। और बाकी जो आपने कहा था कि मैंने माना कि ऑडियो भी सही है, तो भाई जो लोग करते हैं, मैंने कहा था जो लोग करते हैं, ये बरेलवी वाले हो, देवबंदी हो, जो भी हो, जो लोग ये ऑडियो में करते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहता, लेकिन मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर ये है कि भाई यूट्यूब पे किया जाए। अगर आप आते हैं तो बताइए, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, कल आइए, आज आइए, जब आइए। आपने एक चीज कही है कि आप इसलिए ऑनलाइन करना चाहते हैं ताकि लोग शक्ल देखें, दाढ़ी देखें, यानी आपका ये मकसद नहीं है हक वाज़ेह हो, आपने वो कहा कि दाढ़ी देखें, यानी तो अगर ऐसा है तो आपको तो बहुत मिल जाएंगे अच्छे अच्छे शक्ल वाले, आप उनको बैठाइए दलाल से, अगर आपको नहीं बात समझना है। दूसरा आपने कहा कि टाइमर लगाएंगे,
भाई टाइमर तो हम फोन पे भी कर सकते हैं ना, टाइम पे आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम बताएंगे, आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ये आइडिया लाखों लोग भी सुनेंगे, आप यूट्यूब पे लगा देंगे तो लाखों लोग सुनेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसमें ना कोई डर की बात है। दूसरी बात, आपने खुद कबूल किया है जब मैंने कहा है कि भाई जो बरेली हजरत फोन पे बात करते हैं तो वो सही नहीं करते, तो आपने कहा नहीं वो भी सही है, ठीक है। आपने खुद कहा कि वो भी सही है, ऐसा नहीं कहा, उनकी तरदीद की आपने। जब वो भी सही है और हम भी मानते हैं कि इसी पे बात करो फोन पर, तो हमारे आपके बाद इत्तेफाक हो गया, तो जो चीज का इत्तेफाक है उसको माना जाएगा, इख्तलाफ वाली चीज पे थोड़ी माना जाएगा, ठीक है। ये शराइत में से है, हाँ शराइत तय कर लेंगे टाइमर का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पाबंद होंगे, आप भी मैं भी, आपके टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा, मेरे टाइम पे आप नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। मैं मेरी बात को असल में आपने गलत समझा। मेरा ये मकसद नहीं था कि जो है वीडियो पे लोग दाढ़ी और टोपी देखेंगे तो जो है वो बहुत बेहतर होगा, सिर्फ ये मकसद नहीं था। बात यह है, देखिए आप भी जो है वो मानेंगे इस चीज को कि भाई ऑडियो तो बहुत सारी करते हैं लोग, कोई क्या है, कोई क्या करने वाला काम है, कोई क्या करने वाला है, कोई जो है दाढ़ी वाला है, कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है, तो सबकी ऑडियो की वो बात नहीं होती। लेकिन जब दो बादशाह लोग बैठ कर, एक हाफिज हो, कारी हो, आप आलिम हो, तो ये दोनों लोग जब जिम्मेदार बैठकर वीडियो पर बात कर रहे हैं तो लोग देखेंगे भाई दोनों बादशाह हैं, दोनों जिम्मेदार हैं, तो दोनों की बातों को लोग संजीदगी से लेंगे। वरना आज कितने ऐसे मुनाजिर साहब हैं फेसबुक के, व्हाट्सएप के, जो दिन में दसियों जो है ऑडियो करते हैं, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट है, भाई कौन बोल रहा है क्या पता। ऐसे ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है, ठीक है, ये बात है। भाई देखो भाई, इस तरह तो बहुत से, आप क्या आप अपने आप को बादशाह बातिन में भी समझते हैं या जाहिर में भी समझते हैं? ये तो अल्लाह की बात है ना, अल्लाह की, अल्लाह को अल्लाह के नजदीक कौन मकबूल है, कौन बादशाह है, ये तो छोड़ दीजिए, आप जाहिर की बात ना 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 आपके नजदीक नहीं, आपने वही बात कही है, जाहिर। भाई बहुत सारे देखो इस तरीके से जो होलिया अच्छा रहता है, और लेकिन बातिन उनका सब बहुत गंदा रहता है, सबको मालूम है। तो ये इस पे मत जाइए, ये मकसद है दलील पे बात करने का, ये मकसद नहीं है आप किसी को क्या दिखा दें क्या नहीं दिखा दें। दलाइल सामने वाले पे आना चाहिए, क्या दलील है। तो आप जो हम आपसे बात करेंगे तो दलील से बात करेंगे, किताब के हवाले से बात करेंगे, अपनी बातें नहीं करेंगे। अवाम को क्या चाहिए, कैसा दिख रहा है उससे नहीं चाहिए, अवाम को दलाइल चाहिए, कुरान हदीस से सलफ से क्या दलाइल दे रहा है, वो दलाइल अवाम पे असर पड़ता है। आप बताइए, एक आदमी बहुत बातिन उसका बहुत गंदा है, जाहिर बहुत अच्छा है, तो क्या असर पड़ेगा? क्या आपने इल्म गैब जाना हुआ है? बातिन का अल्लाह जानता है कि बातिन किसका कितना सही है, तो वो छोड़ दीजिए। मुनाजरा जो है वो दलाइल से बात होती है, ठीक है। और उसूल मुनाजरा में बहुत सारी चीजें लिखी भी हुई हैं, तो इस तरीके से मत करिए, क्योंकि आप कई किताबों से मैं हवाले दे सकता हूँ, ठीक है, उसूल मुनाजरा से। तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए कि ये ऐसा वैसा, ये तो हिलाबाजी है। आपको दलाइल से बात करना है तो फोन से होगा, और फोन से भी होता है और अच्छे भी होगा। हम आपको दलाइल देंगे आपके व्हाट्सएप पे, और आप दे देना मेरे व्हाट्सएप पे जो आप पढ़ेंगे। तो आवाम को छोड़ देना, ये सारी बात तो आवाम पे छोड़ी जाती है ना भाई। आप हम फैसला नहीं करेंगे, दलाइल आ गया सामने, जो भी आइडिया या देखेगा वो खुद फैसला कर लेगा सही दलाइल किसके पास है। शायद आपको यही डर लगा हुआ होगा कि आप कितना कितनी देर तक बात करेंगे हजरत, मौका दें हमें भी। देखो चलिए भाई, ठीक है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जो आपने की जाहिर और बातिन की बात, तो भाई बातिन जो है ना वो आवाम नहीं देखती, आवाम जो है वो जाहिर ही देखती है। अब दो आदमी हैं जिन्होंने पैंट शर्ट पहना हुआ है और जनाब उनकी दाढ़ी भी है नहीं, और सर पे भी जो है उन्होंने टोपी भी नहीं लगाई है, और साथ ही साथ उन्होंने चांदी की चेन पहनी हुई है गले में, और अंगूठी 4 पहनी हुई है। तो इस तरह के दो लोग अगर हिफ्जुल ईमान पर बात करेंगे तो उसे संजीदगी से कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। जो खुद जो है संजीदा है वो तो संजीदगी से नहीं लेगा इन दोनों की बातों को। लेकिन दो जो बादशाह लोग हैं, बज़ाहिर, क्योंकि जाहिर ही अवाम देखती है ना, कोई अल्लाह ताला तो है नहीं अवाम की वो जो है बातिन देखेगी। हम अवाम के लिए कर रहे हैं तो अवाम जाहिर देखती है। तो देखेंगे ये हाफिज जी बैठे हैं, ये कारी साहब बैठे हैं, इधर से ये साहब जो है वो आलिम साहब बैठे हैं, तो आप चलिए संजीदगी से सुना जाए, ठीक है जी। क्योंकि अगर अवाम बात कर रही है, लोग ये समझें अगर कि भाई ये अवाम बात कर रहे हैं, वो साहब गोश्त बेचने वाले बात कर रहे हैं, इधर मूंगफली बेचने वाले बात कर रहे हैं, तो अगर किसी के पास दलील की कमी भी हो गई तो लोग ये कहेंगे यार चूंकि इनका काम मूंगफली बेचना था लिहाजा इनकी दलील कम हो गई, हमारा मामला अच्छा है। तो अगर दोनों बादशाह लोग सामने बैठ के बात करेंगे तो लोग ये समझेंगे हाँ भाई ये जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के लिए तैयार हूँ
آپ کو دقت جو ہے اس میں وہ بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ یہ چیز آپ نے مانا ہے کہ کوئی دیوبندی حضرات جو علماء دیوبند کا ماننے والا ہو وہ بھی باشرہ ہوتا ہے، باطن اور ظاہر دونوں۔ چلو یہ بہت اچھی بات ہے، آئیڈیا سب سمجھ اچھا ہے، یہ چیز آپ نے مان لیا، بہت اچھا ہے کہ دونوں چیزیں، دونوں کو مان لیا کہ وہ بھی باشرہ ہوتے ہیں، اور باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی۔ اور دوسری بات آپ نے ایک چیز توہین کی ہے علم کی، ٹھیک ہے۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ دلیل سے بات کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ایسا ہے جو مونگ پھلی بیچنے والا ہے، جو پھلا بیچنے والا، کیا مونگ پھلی بیچنے والا عالم نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام میں بہت سارے تجارت کرتے تھے لیکن عالم ہوتے تھے، تابعین میں بہت سے محدثین جو تاجر ہوتے تھے بہت ساری چیزیں بیچتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے چیز ہے کہ وہ پہلے تجارت کرتے تھے۔ تم اس طرح علم کی توہین کر رہے ہو۔ آدمی کوئی چیز بیچ کر کے بھی علم حاصل کرتا ہے، بہت بڑا عالم محدث بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے خود بتایا کہ آپ عالم نہیں ہے، تو آپ نے خود عوام، آپ تو خود عوام میں ہو، آپ عالم نہیں ہو، پھر آپ نے خود قبول کیا کہ آپ عالم نہیں ہو اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ فلاں ایسا بادشاہ ہو، یہ چلو کہ آپ بہت بادشاہ ہیں، آپ اس کا ثبوت کیسے دیں گے؟ آپ کا کیا؟ ہاں بتائیے، یوٹیوب پہ آپ کی تقریر ہے لائیو، دیکھ لیتے ہیں سرچ کر کے، ہاں دیکھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں دیکھ لیجیے، آپ بہت بادشاہ ہیں اور آپ اللہ والے بھی ہیں، خود ہی مٹو میاں آپ عالم بھی نہیں ہیں، آپ نے خود قبول کیا ہے، ماشاء اللہ قبول کر لیا ہے، خود عالم نہیں ہے، اور کیسے دلیل دیں گے جب عالم بھی نہیں ہے؟ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کوئی شروعات نہیں پڑھے، حدیث کی کتابیں نہیں معلوم ہے، تفسیرات نہیں معلوم ہے، اصول فقہ بھی نہیں معلوم ہے، فقہ بھی نہیں معلوم ہے، کیسے کریں گے؟ یہ جو تقریر آپ کر رہے ہیں اس سے پرہیز کریں، موضوع کی بات کریں۔ بہرحال ایک چیز موضوع سے ہی کر رہا ہوں، آپ نے خود کہا، موضوع سے ہی کہہ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں فلاں مونگ پھلی بیچنے والا ہے، ارے مونگ پھلی بیچنے والا کیا عالم نہیں ہوگا؟ کیا ریزن ہے کہ آپ نہیں سننا چاہتے میری بات؟ ارے میں تو سن رہا ہوں، میری بات وہ آپ کٹ کر رہے ہیں، میں آپ کی بات پوری سنا، جب آپ چپ ہو گئے تو میں بولا، میں جب بول رہا ہوں تو آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور بول رہے بولیے۔ دیکھو خود ہی ڈسٹرب کر کے خود ہی بولتے ہیں اور بول رہے ہیں۔ آپ کی بات ختم ہو گئی تھی، میں اپنی بات کر رہا تھا، پھر آپ نے ڈسٹرب میں نے تو نہیں کہا نا، خیر آپ کی بات تو اور کر لیجیے، کریے۔ چلیے آپ ڈسٹرب کر لیے تو اس میں کیا کرنے کا؟ میں کہہ رہا ہوں اب چپ ہو جائے، پھر میں بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پہلی بات، میں بول رہا ہوں نا، آپ کیوں بیچ میں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ بخلاف مت، اپنے جاری رکھو آپ ہی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلی بات تو میری بات کا آپ نے غلط مطلب لیا، میں نے صرف مونگ پھلی اور کسائی کی بات نہیں کری تھی، میں نے یہ کہا تھا ایسا بندہ ہو جس نے پینٹ شرٹ پہنا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گلے میں چین بھی ہو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تین ہو، تو ایسا کون سا اللہ کا ولی ہوگا، ایسا کون سا اللہ والا ہوگا جو اس طرح کا کرے؟ مجھے پتا تھا کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ بیچ کی باتیں ادھر ادھر کریں گے، اس وجہ سے میں نے ساتھ وہ بھی اٹیچ کیا تھا۔ بہرحال چھوڑیے یہ ساری چیزیں، اصل مقصد یہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں جی ٹھیک ہے جی، میں عالم نہیں ہوں اور میں جو ہے جناب عربی پڑھ سکتا ہوں، عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ میری بات ہو جانے دیں نہ بیچ میں نہیں، عالم کی تعریف کیا؟ آپ نے سب کر دیا، میں سمجھ گیا، اب عالم کی تعریف بتائیے۔ آپ نے کہہ دیا، آپ نے عام اور عالم کی بات کیا، عالم کی تعریف کیا ہے؟ چلیں جی میں بتا دیتا ہوں بھائی، میں نے خود کہا میرے تعلق سے بھائی میں عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ بھائی عالم کی تعریف آپ مجھ سے تب پوچھتے جب میں کہتا کہ میں عالم ہوں۔ بات یہ ہے، میری بات مکمل ہو جانے دے، بات یہ ہے کہ بھائی میں خود تعریف میں پوچھ رہا ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے عالم ہونا چاہیے اور یہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، عام آدمی نہیں ہونا چاہیے، تو عالم کی تعریف مجھے کر دینا، تبھی پتہ چلے گا نا عالم کون ہے۔ فی زماننا جسے علم صرف و نو کا علم ہو، جو اپنے جو ہے ضروریات کے مسائل بغیر کسی کے مدد کے جو ہے کتاب و سنت سے نکال سکتا ہو، وہ عالم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، کسی کا محتاج نہ ہو، میں وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں۔ اچھا جی، لیکن میری بات مکمل ہو جانے دیں۔ ہاں جی، آپ نے مجھے عالم مان لیا ہے، میری بات تو سن لیں، پرہیز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بات تو سن لیں، میری بات سن لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں مانتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں نے درس نظامی نہیں پڑھی، علم صرف و نو کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ اگر عربی کی جو ہے وہ غیر عربی کتابیں میرے سامنے آئیں گی تو میں اس کو پڑھ نہیں سکوں گا، ترجمہ کرنا دور کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں عالم نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ عالم ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی اب جو ہے بات یہ ہے کہ کوئی غیر عالم کسی عالم سے بات کرے تو یہ تو اصول مناظرہ کے بھی خلاف ہے۔ اگر آپ عالم ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اپنی جماعت میں عالم ہیں، تو میں ایک کام کرتا ہوں، آپ ہمیں ٹائم دیجئے، میں اپنی جماعت کا جو عالم ہے اسے لے کر آتا ہوں حفظ الایمان پر بات کرنے کے لیے، آپ میرے یوٹیوب پہ تشریف لے آئیے اور میں ان کو بھی مدعو کر لوں گا جی۔
हाँ, आपने एक चीज साफ साफ कही कि आप आलिम नहीं है, जी ठीक है। सही है। हाँ, आपने एक चीज साफ साफ कही कि एक आप आलिम नहीं है, और जी। मुझे भी आपने आलिम माना है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन नहीं है, उम्मीद है। हाँ, मुझे उम्मीद है इस चीज की, उमर भाई मुझे उम्मीद है यही कि आप आलिम होंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा, मैं आलिम होऊंगा, मतलब उम्मीद है, आप अभी माने नहीं है। नहीं, क्यों मानूंगा मैं जब देखूंगा और आप दिखाएंगे, अपनी सनद दिखाएंगे और गैर अरबी किताबों को पढ़कर आप उसको समझाएंगे तो फिर होगा। अभी मैं क्या जानूं आप आलिम है कि नहीं है, मैंने तो शक्ल भी आपकी देखी नहीं है, आप बाशराबी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। आपने एक उसूल बताया है कि कोई आदमी बगैर किसी मदद के कुरान और हदीस से जो है मसाइल निकाल सके, ये आपने उसूल बता दिया। वो किताबों सुन्नत से कहाँ से निकालेगा हजरत? इल्म सिर्फ होना का इल्म कहाँ से आएगा? उसके घर में आएगा। आपने कह दिया है कि वो चीज निकाल ले, तो वो जो चीज निकालेगा किताबों सुन्नत से मेरे भाई, बगैर किसी की मदद के कैसे निकालोगे अगर आपको नहीं आती तो? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं निकाल लूंगा। और दूसरी बात सुने, एक बात सुने, सिर्फ नौ का इल्म के बगैर आप कैसे निकालोगे ये बता दो मुझे। जैसे आप मुझसे इल्म की आलिम की तारीफ करवा रहे थे ना, मैं पूछ रहा हूँ इल्म सर्फ नौ के बगैर आप कैसे जो है वो निकालोगे मसाइल, बताइए जरा। हाँ, तो इल्म सर्फ न हो मुझे आता है ना। कैसे आता है? किसी सनद वाले से आपने हासिल किया होगा ना, कि घर पे आपको आ गया ख्वाब में? क्यों घर पे नहीं पढ़ सकता कोई? घर पे भी कोई सनद वाला ही आएगा ना बताने के लिए। अरे यार, ये घर पे कोई तालिब नहीं रहता यार, वाली बात आएगा। आपके घर पे भी पढ़ाने वही आएगा, घर पे भी पढ़ाने वही आएगा जिसके पास इल्म सर्फ नौ का होगा, वही तो पढ़ाएगा आपको। तो वही तो कह रहा हूँ, होना चाहिए ना, पढ़ाई होना चाहिए, चाहे घर पे हो चाहे जहाँ हो। आपके आला हज़रत में कहाँ, कौन से मदरसे में पढ़ा था? कहीं नहीं पढ़ा था। हाँ, नहीं, कहीं नहीं पढ़ा था। उनके घर में सनद मौजूद थी, उनके अब्बू जो है वो आलिम थे, उनके दादा आलिम थे, सनद थी ना उनके पास भी। तो सनद नहीं थी, कौन सी सनद थी? दिखाएं कोई सनद हो। उनके वालिद मोहतरम क्यों नहीं? उनके वालिद कोई सनद नहीं है, बस पढ़ा दिए थे, कोई सनद नहीं है। नहीं तो आपके आला हज़रत ने खुद लिखा हुआ है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है। उनका उस्ताद मदरसे जाकर उन्होंने नहीं पढ़ा, नहीं, उन्होंने खुद कहा मेरा कोई उस्ताद नहीं है। मैं दिखाओ, मैं हवाला दूं क्या किताब का? हाँ, तो आप जब आएंगे ना यहाँ पे आ। दूसरी बात आप नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ भाई, आपके पास है ना ये सिर्फ नौ का इल्म, आप निकाल सकते हो ना। हाँ, बस एक तारीफ हो गई। अपने आलिम को कहता हूँ। और दूसरा आपने कहा कि आप आलिम गैर आलिम है, मैं आलिम हूँ, तो ये इसमें बात नहीं हो सकती। आपने खुद कबूल किया है। बेहतर यही है, बेहतर यही है कि भाई जो आलिम है वो आलिम से गुफ्तगू करे, जो अवाम है वो अवाम से गुफ्तगू करे। अच्छा, तो आपके तफसीरे नईमी में मुफ्ती अहमद यार खान ने सुनिए बात को, मेरे बात सुनिए। अब भाग रहे हो, मैं दे रहा हूँ, वही जवाब दे रहा हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा हुआ है कि मुनाजरा में फरीकैन का इल्म में बराबर होना जरूरी नहीं है। बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से भी मुनाजरा करे। तो ये आपने अपने ही अकाबिर के खिलाफ बात कही है, दो बातें अपने अकाबिर के खिलाफ कही है आपने। ना जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपने कहा ना कि ये एक आलिम जो है गैर आलिम से मुनाजरा नहीं कर सकता। आपकी समझ में गलती है। सामीन आपने देखा, ये पलटी मार रहे हैं। इन्होंने खुद कहा है कि जो आलिम हो, आलिम है, जो आलिम है, ये यूट्यूब पे ही जाएगा। ये आइडिया यूट्यूब पे ही जाएगा। आप नहीं आओगे यूट्यूब पे, अपनी शक्ल बचाओगे, पर्दा है आपका, आपके घर की औरतों भी पर्दा करते हो, क्या दिक्कत है? अच्छा, वो यूट्यूब पे। अच्छा, ये बताओ, जो सामने ना आए वो पर्दा है। तो आपके आला हज़रत को जब मुनाजरा का चैलेंज दिया गया था तो वो बाहर नहीं निकले थे, तो इसका मतलब जितना भी आपका झूठ है, अब यूट्यूब आप किताब ले ले, हवाले देता हूँ। आप किताब मांगे लेकर आए, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। आप तो बोलो किताब भी भेज, आप आओगे तब ये बता दो। अरे यार, आप बात क्यों नहीं कर रहे? आपने क्या बात कर रहे? ऐसा बात करो फोन। अगर आप में दम है, आपको हाजी में किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकता हूँ, मैं डरता नहीं। माशाअल्लाह, ये आपने मान लिया कि आपके पास दम नहीं है मुझसे मुनाजरा करने का फोन पर। ये आपने अभी खुद को यूट्यूब पे इसका ये मतलब है। तो क्या मेरा रिश्ता कहीं कराना है क्या? आप मेरी शक्ल देख रहे हो? बताइए।
इनको खुद पता है कि इनके पास दम नहीं है बात करने का। उमर भाई इसलिए ये डर रहे हैं बेचारे। मुश्ताक अली साहब नाम है इनका। हाँ सुन ले मेरी बात। रुकिए ना, मेरे टाइम पे क्यों बोल रहे हैं? खौफ किस चीज का है? आप पे खौफ किस चीज का है? कि आप आगे यूट्यूब पे जलील होंगे, लोग आपकी शक्ल पहचान लेंगे, 4 जूते मारेंगे, इसलिए यूट्यूब पे नहीं आ रहे। माशाल्लाह, ये आप मान रहे कि आप ये मान रहे हो कि फोन पर बात करने में आप जलील हो गए, आप डर रहे हैं। ये बात आप खुद मान, लोग आपकी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे, ये खुद मान ला रहे हो। जूते मारने वाले हैं मुनाजरे के बाद आपको, वो शकल से क्या मतलब है? दलील से बात होती है कि शकल पे होती है? कि आप जो है यूट्यूब पे आए, लोग आपकी शक्ल देखें और फिर नहीं, आप दलील के बजाय पूरी मतलब ये है, मतलब ये पता चल गया बरेली के तुमने जलील कर दिया। देवबंद को तुमने खुद माना की बात करा। देवबंदी जो है वो अपने फोन पर बढ़ाते हैं, लेकिन मुनाजरा करने की इनमें दम नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, कभी सामने नहीं आते। अपनी शक्ल दिखा, इनके घर की औरतें पर्दा नहीं करती, लेकिन इनके घर के मर्द बड़े पक्के पर्दे वाले होते हैं। ये बदतमीजी पे आ गए। जितना पर्दा आप करते हो, देवबंदी मर्द करते हैं, उससे आधा भी पर्दा अपनी औरतों को सिखा दो। तुम्हारे आला पर्दा ही करते थे, जो मुनाजरा का चैलेंज देने के बाद भी बाहर नहीं आए। हाँ तो ये जितना झूठ है ना, ये जितना झूठ है, ये सामने आपको तो हमारी झूठ तुम्हारी किताब में लिखा है, ये तुम्हारी किताब से, तुम्हारी किताब से क्या नाम है, तुम्हारी किताब ऑडियो पे कर लो, किसी हवाले मांगो, हवाले मांगो ना, बस ये हो जाए। हवाले मांगो, हवाले क्यों नहीं मांगते? हवाले शक्ल के साथ हवाला मांगो। पहले अपने आपको दिखाओ कि मैं ऐसा जाहिल, मैं ऐसा जलील आदमी हूँ जो जलील करवाने आया हूँ, फिर आप हवाले दो। लोग आपकी शक्ल भी देखें, फिर हवाले भी देखें। ये दलील के अल्फाज तुम्हारे आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल को कहा है, लेकिन शक्ल दिखाने में क्या दिक्कत है बता दो। दलील के अल्फाज तुम्हारे आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल के लिए कहा है। यही तुम्हारी आदत है। मुजद्दिद के जो दूसरे चैनल पे चल रहे हो, अगर पर्दा करती है यार, जितने पक्के तुम पर्दे वाले हो उतना उनको भी बना दो। अच्छा तुम तुम्हारे मुजद्दिद साहब पर्दा करते थे? तुम्हारे मुजद्दिद साहब पर्दा करते थे? नहीं, पर्दा करते थे, पर्दा नसीम थे। नहीं, पर्दा नसीम थे मेरे भाई। क्या बोल लो? तुमने कहा ना तुम्हारे मुजद्दिद साहब पर्दा करते थे, पर्दा नसीम थे। तुम्हारे उसूल से तुमने खुद कबूल किया कि तुम्हारे मुजद्दिद को जब मुनाजरा के लिए बुलाया गया था तो घर में ही छुपे थे, बाहर निकल ही नहीं रहे थे, न चैलेंज कबूल किए, तो वो पर्दा नसीम थे। उनके घर में कोई गैर मर्द भी चला जाता था तो कहते थे अरे आप, ये तो आपकी बांदियां हैं, आप क्यों इतना शर्मा रहे हो? वो बंदा घर में घुस के भी शर्मा रहा है, लेकिन आपके आला जब कह रहे हैं कि नहीं ये तो आपकी बांदियां हैं, आप शर्मा क्यों रहे हो? तो ये हाल है आपके मुजद्दिद साहब के अपने घर की हालत का। अब बोलते हो कि कितना पर्दा नसीब है, जब घर में जाते थे दूसरे लोग। बोलो तो इसका भी आवाज देखो कितना मुझ में हिम्मत है, मैंने सुनी तुम्हारी बकवास। किताब में हयात आला हज़रत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी ने खुद लिखा है, हयात आला हज़रत जफरुद्दीन बिहारी जो इनके आला हज़रत के खास शागिर्द थे, और ये कह रहा है कि ये बकवास है। यानी जफरुद्दीन बिहारी की जो उसने बातें लिखी है वो बकवास है। माशाल्लाह, बरेली अकाबिर जो बकवास करते थे इन्होंने माना। अच्छा देखें जी, आप जो बोले मुझ में तहम्मुल था, मैंने सुना, लेकिन तुम में इतनी औकात नहीं तुम्हारी, तुम मेरी बात सुन सको। अब तभी तो डिस्टर्ब तुम कर रहे हो, मैं हवाले पेश कर रहा हूँ, तुम उसमें बीच में मुदाखिलत कर रहे हो, तभी तुम्हारे पास औकात नहीं है। कहाँ तुम मुदाखिलत कर रहे हो? देर तक मैंने सुना उतनी देर तुम सुन लो। मुदाखिलत कर रहे हो बार बार। जितनी देर मैंने सुना उतनी देर सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है जी, बहरहाल जो भी मसला हो, आप अगर मर्द हैं यूट्यूब पे आने में क्या दिक्कत है वो बता दीजिए, और यूट्यूब पे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दो। अब इन्होंने कहा कि मर्द हैं तो यूट्यूब पे क्यों नहीं आते? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे बता। खामोश रहो। तो भाई जितने बरेलवी यूट्यूब पे नहीं आते, फोन पे बात कर रहे हैं, वो सब नामर्द इनके कह रहे हैं, सब देख लीजिए, सबको ये नामर्द कह रहे हैं। हाँ, अब सबको नामर्द कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इख्तिलाफी मसला है, हमारे बरेलवी उलमा जो रज़वी हैं वो इसके नाजायज होने के कायल है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो इत्तेफाकी है। तुम क्यों नाजायज होके कायल है? किस चीज में नाजायज होके कायल है? वीडियो में जो है बयान करने में, वीडियोग्राफी के नाजायज होने के कायल है। तुम्हारे यहाँ तो इत्तेफाकी मसला, तुम्हारे यहाँ सब आते हैं, जितने बड़े हैं वो आते हैं, तुम क्यों नहीं आते? एक मिनट, रजवी लोग हैं वो यूट्यूब पर तुम्हारे वीडियो बनाने के नाजायज बता दो खाली। ये देखो जनाब, नहीं है अभी सुनो, ये खुद क्या है वीडियो
अब बड़बड़ा रहे हैं, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहे। अब बड़बड़ा, सुनिए मेरी बात, तुम्हारी जवाब देने की जनाब, ये देखो इसने खुद मान लिया है कि इसके जो बरेली हजरात हैं ये नाजायज बोलते हैं, तो ये नाजायज काम के लिए ये कोशिश कर रहा है। अब सोचो, ये नाजायज काम के लिए खुद नाजायज हमारे हमारे बहुत सारे जो है उलमा वो इसके जवाब के कायल है, और कई सारी एक जमात पूरी जो इसके जवाब की कायल है। तुमने कहा रज़वी हजरात जो है वो नाजायज, तुम तो जायज से क्यों वीडियो से बच रहे हो? बदतमीजी कर रहा है, देखो ये बदतमीजी पे उतर आया, ठीक है। ये खुद कह रहा है बंदा कि ये रज़वी हजरात होने पर नाजायज कह रहा है। जाहिल आदमी को इतना नहीं पता कि अपनी जमात को वो फतवा बता सके, उसे उस जाहिल आदमी को ये नहीं पता कि ये वीडियोग्राफी जायज है कि नाजायज है उसके नजदीक। ये इसने करेगा, क्या मुनाजरा करेगा? बेचारे ने पता करो खुद कबूल कर लिया धर्म में जायज है कि नाजायज है वीडियोग्राफी, इसका जवाब नहीं दे पागल हो गया। तुम हिफ्जुल ईमान पागल हो करोगे जब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे धर्म में ये वीडियोग्राफी जायज है कि नाजायज है। अब ये बंदा खुद कह रहा है कि ये नाजायज है, और ये हजरात मोहतरम, आप हजरात ने पूरी ऑडियो सुन ली है, और मेरी तरह आपको भी यकीन हो गया होगा कि ये भाभी जो है ना, ये फ़ोन पर बात करने इसीलिए आते हैं ताकि इत्मीनान से बात ना होने पाए। ये आके बड़बड़ आखिर की जो बात उसमें क्या समझ आया हम लोगों को? कुछ भी नहीं, वो बोले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे। तो इसी वजह से ये लोग जो है यूट्यूब पर आमने सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वहाँ अपने टाइम में अपनी बारी में अपने मौजू पर दलील देनी होती है, और फ़ोन में क्या है, बस अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई कैद कोई शर्त कुछ तो होती नहीं है। तो इसी वजह से ये लोग जो है ना यूट्यूब पे नहीं आते। मैं भाभीियों से कहता हूँ कि आप अपने मुनाज़रीन को तैयार करो कि भाई आप यूट्यूब पर इंसान के बच्चे की तरह आओ, और आने के बाद तामुल से बातों को सुनो, और उसके बाद फिर उन बातों का जवाब दो और मौजू पर बात करो। आमने सामने बैठने में क्यों मौत आती है? क्या ऐसा मसला है, क्या ऐसा डर है कि तुम जो है वो सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते? वो रीज़न बता दो।